Today we are going to continue our lesson on light. Today we'll take the topic image formation in spherical mirrors. In our last class, अपने पिछली क्लास में हमने spherical mirrors के बारे में पढ़ा था और उनके डिफरेंट रे डायग्राम के डिफरेंट जो पॉइंट्स थे, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एपर्चर एंड सो मेनी थिंग्स, जिनका हमको जानना बहुत ज़रूरी है. अनलेस वी recall all those things, we cannot proceed with image formation in spherical mirrors. So far as image formation in spherical mirror is concerned, spherical mirror दो प्रकार के होते हैं, concave mirror और convex mirror, आपको पता है. इसके लिए certain rules follow किए जाने हैं. There are certain rules which are to be followed while we are studying image formation in spherical mirror. Let's see what are they. The first rule is rules to be followed during image formation. During image formation. Number one, the ray of light or a ray of light that passes through the mirror should be parallel to the PA, that is principal axis. इसका मतलब क्या हुआ? Suppose we are working on a mirror. Say this is a concave mirror. You know there is one line which touches the pole here. This is called principal axis. This means जब भी लाइट रेज मिरर को स्ट्राइक करती हैं या ऐसे स्ट्राइक करती हैं, तो these light rays should be parallel to the central axis. जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल में होने चाहिए, अदरवाइज इमेज नहीं बन सकता. दिस इज द फर्स्ट रूल. नाउ कम टू द सेकंड. Second one is any ray of light that passes through the mirror after reflection must passes through the focus of the mirror. यहाँ पे देखिए, सेकंड, एनी रे ऑफ लाइट दैट passes through the mirror after reflection. Just see once again, this is a mirror, this is the principal axis, okay, you know this is incident rays parallel to the axis. This was the first one. Second one is when these light reflected back like this, see this, they should touch one single point, that is called focus. यानी कि जो भी परावर्तित किरणें हैं जो दर्पण से वापस आती हैं
उसको हमेशा फोकस से होके आना ज़रूरी है, यानी कि ये फोकस पे इंटरसेक्ट करें। तो रिफ्लेक्टर रे हमेशा फोकस पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये नियम है। अगर ये नहीं हो रहा है मिरर में तो ये इमेज नहीं बना सकता। व्हाट वाज द फर्स्ट वन द इंसिडेंट रेज शुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, के समानांतर होना चाहिए, यानी कि आपस में किसी को टच ना करें, पैरेलल लाइन उसी को बोलते हैं। सेकंड है जब ये टकरा के वापस आती हैं तो दे शुड क्रॉस वन सिंगल पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ये दूसरा रूल। तो रे डायग्राम बनाते समय इन चीजों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। लेट्स गो टू नंबर 3। Let's go to number 3. I am taking more time on this because this is very important and you should be thorough of all these things. Unless otherwise you are not in a position, you will not be in a position to draw a single ray diagram. Let's go to the third one. What is the third one? Third one is an image is formed at the point of convergence or divergence of light. An image is formed at the point of convergence and divergence of light. Convergence or divergence according to the law of reflection. देखिए, an image is formed at the point of convergence and divergence of light. That means मैंने आपको बताया था दो तरह के स्पेरिकल मिरर होते हैं, एक कनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। इसका आउटर साइड रफ होता है, इसका इनर साइड रफ होता है, राइट? इफ यू सी दिस, इफ यू ड्रॉ दिस प्रिंसिपल एक्सिस, इफ यू ड्रॉ ए प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने आपको पहले बताया था अगर इसको स्फीयर मान लें तो रिमेनिंग पार्ट जो है ये। तो हमेशा एक चीज़ आप ध्यान रखें, इसमें अगर हम एक टैंजेंट खींच के देखें तो ये जो एक्सिस होगा ये होगा पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स, दिस इज वाई एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव वाई, यहाँ पे नेगेटिव एक्स, लाइक दैट। तो ये जो पोर्शन होगा ये पॉजिटिव एक्सिस होगा। आगे हम चलेंगे जब मिरर फॉर्मूला करेंगे तब ये चीज़ और क्लियर होगा आपको। इसको मान के चलते हैं। सेम चीज़ अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये टेंजेंट होता है एक्चुअली, यहाँ में भी सेम फंडा है। इसके इस तरफ में प्लस वाई एक्सिस, ये प्लस एक्स एक्सिस। यहाँ देखिए कन्वर्जेंस, आई एम ट्राइंग टू मेक यू कन्विंस अबाउट कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? जब लाइट रे इस पे गिरता है, सी हियर, व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन ए कनकेव मिरर, व्हाट हैपेंस? अभी सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था, यहाँ पे फोकस है, ये फोकस से वापस आएगा, ये फोकस से वापस आएगा, ऐसे। दिस वाज द सेकंड पॉइंट। तो दिस इज फोकस। कन्वर्ज मीन्स व्हेन लाइट रे गेट्स क्लोजर, जब रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे नज़दीक आ जाती है किसी एक पॉइंट पे, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो नेचुरली जहाँ कन्वर्ज होता है उसी के आसपास, उसी पॉइंट पे हमेशा इमेज बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि पोजीशन डिफरेंट हो तो डिफरेंट इमेजेस बनते हैं। विल गो टू दैट लेटर ऑन। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कन्वर्जेंस मीन्स व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज गेट क्लोजर टू ईच अदर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फोकस। और डाइवर्जेंस में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो व्हाट विल हैपन? इफ यू सी दिस, दिस विल गो लाइक दिस, ये ऐसे रिटर्न हो जाएगा,
यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऐसे रिटर्न हो जाएगा, लेकिन उसका एक वर्चुअल रे उस तरफ में क्रिएट होगा बैक साइड, जहाँ पे यहाँ फोकस है, यहाँ सी है, तो ये ऐसे कटते हुए इसको टच करेगा। अगर आप देखेंगे ये ऐसे ऐसे कटते हुए टच करेगा। तो आफ्टर ऑल फोकस कन्वेक्स मिरर में बैक साइड में होता है, हमको मिरर के अंदर दिखाई देता है, कनकेव मिरर में मिरर के सामने दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो कन्वेक्स मिरर में डाइवर्जेंस होता है, इसलिए हमको इमेज राइट हैंड साइड दिखाई देता है, यानी बैक साइड ऑफ द मिरर। और कनकेव मिरर में कन्वर्जेंस होता है, इसलिए हमको इन फ्रंट ऑफ द मिरर दिखाई देता है। ये बेसिक चेंजेस हैं। तो ये दिस इज द थर्ड rule, and now come to the fourth one. Fourth one is image. Image is of two types. दो टाइप के इमेजेस होते हैं, हमेशा आप जान के रखिए। दो कैटेगरी होती है एक्चुअली, टाइप्स नहीं। पहला होता है, फर्स्ट वन इज रियल इमेज, दूसरा है वर्चुअल इमेज। हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और ये होता है आभासी प्रतिबिंब। दो बड़े कैटेगरी हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। जो कन्वर्जेंट मिरर होता है, यानी कि कनकेव मिरर या अवतल दर्पण, हमेशा रियल इमेज देता है, और जो कन्वेक्स मिरर है हमेशा वर्चुअल इमेज देता है। इवन प्लेन मिरर भी वर्चुअल इमेज देता है, यानी कि जो प्रतिबिंब, इसको हम स्क्रीनिंग नहीं कर सकते, इस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं प्रोजेक्ट कर सकते, लेकिन इस इमेज को हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। रियल इमेज के साथ में और क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मज़ेदार है। जब कोई इमेज रियल होता है तो इसका साइज स्मॉल हो जाता है, पोजीशन इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। अगर आप देखेंगे जब कोई इमेज रियल इमेज होता है तो उसका साइज हमेशा छोटा होता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर का तो साइज इमेज में आपको 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर दिखाई देगा। पोजीशन की बात करें तो रियल इमेज में पोजीशन उल्टा दिखाई देता है। अगर मान लीजिए कलम ऐसा है और इसका मिरर में आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो आप इसका इमेज ऐसा बनेगा। ये इसका खासियत है, और ये हमेशा होता है कनकेव मिरर में। कनकेव में तो जैसे ही हम कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं, आपका दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि ये कन्वर्जेंट मिरर है, और इसमें जो भी इमेज बनेंगे वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसलिए ये हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर होते हैं। ये खासियत है रियल का। ये देखिए इतने खूबियाँ हैं इसके अंदर। तो ये कैटेगरी अगर आप याद रखेंगे तो आपको कभी भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। रियल इमेज ऑलवेज स्मॉल इन साइज इन कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, इट्स पोजिशन इज इन्वर्टेड इन कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, and it is always mostly in front of the mirror। मिरर के सामने में बनते हैं क्योंकि ये कन्वर्जेंट इमेज होता है। उसका ऑपोजिट में अगर आते हैं हम वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब, इसमें देखेंगे ये ज़्यादातर कन्वेक्स में होता है। कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण जिसका तल बाहर निकला हुआ है, जिसमें इमेज हमेशा आभासी यानी कि वर्चुअल, उसके बाद
डिमिनिश, कभी कभी ये डिमिनिश का मतलब होता है धुंधला, धुंधला दिखेगा, धुंधला दिखने को बोलते हैं डिमिनिश या रिड्यूस्ड। उसके बाद कभी कभी ये एनलार्ज भी दिखाता है, एनलार्ज, क्योंकि वास्तविक साइज से बड़ा भी दिखाएगा, क्योंकि हम पोजीशन के ऊपर है कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इरेक्ट, हमेशा कन्वेक्स मिरर में आप अगर इमेज देखते हैं तो इमेज आपको सीधा ही दिखेगा, भले साइज छोटा बड़ा हो लेकिन इमेज आपको अपराइट दिखेगा, यानी कि इरेक्ट दिखेगा, जैसा ओरिजिनल है वैसे ही दिखेगा, उल्टा नहीं दिखाई देगा, ये खासियत है। और हमेशा ये बैक साइड ऑफ द मिरर बनता है, बैक साइड, ये खासियत है। ये मेजर डिफरेंसेस आपको मालूम होने चाहिए इमेज फॉर्मेशन करते समय। ये डिफरेंसेस ही आपको समझने में हेल्प करेगा कि अगर एक इमेज दिख रहा है तो ये कौन सा मिरर हो सकता है, क्या पोजीशन हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट रूल्स। देयर आर 4 रूल्स वी हैव गॉन थ्रू। फर्स्ट वन वाज हमेशा इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होना चाहिए। दूसरा था रिफ्लेक्टेड रेट शुड क्रॉस द पॉइंट ऑफ फोकस। तीसरा क्या था, अभी हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कनकेव मिरर ऑलवेज कन्वर्ज द इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, सॉरी, जब रेज टकरा के वापस आते हैं तो कन्वर्ज हो जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं, क्लोज अप में आ जाते हैं, और डाइवर्जेंस में दूर दूर चले जाते हैं। इसीलिए कन्वर्ज्ड जो मिरर होते हैं वो मिरर के फ्रंट में सामने में इमेज प्रोड्यूस करते हैं, और जो कन्वेक्स होता है, डाइवर्जेंट होता है, वो मिरर के बैक साइड में इमेज प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज अबाउट रूल्स। नाउ लेट्स सी हाउ many types of images formed by spherical mirrors। अगर हम देखें 2 तरह के स्पेरिकल मिरर्स हैं, आप अभी तक आपने पढ़ा है, एक कनकेव, दूसरा कन्वेक्स। कनकेव 6 पोजीशंस या 6 टाइप्स का इमेजेस दे सकता है। विल स्टडी वन बाय वन। एंड कन्वेक्स आपको 2 टाइप का ही देता है। तो टोटल हम 8 इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे जो स्पेरिकल मिरर से प्राप्त होता है, और इसी का एप्लीकेशंस है हमारे लाइफ में। चश्मा है, गाड़ी का हेडलाइट है, रियर व्यू मिरर है, और साइड व्यू मिरर है, डेंटिस्ट जो ग्लास यूज़ करता है आपके मुंह के अंदर दांत चेक करने के लिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, टॉर्च में जो जूम होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ जो डेली लाइफ के एप्लीकेशन में हमारा यूज़फुल है, वही ये 8 इमेजेस से ही कहीं ना कहीं से ये कनेक्टेड है। तो हम पहले पढ़ेंगे कनकेव मिरर के 6 टाइप्स। आप स्क्रीन में देखिए। लेट्स सी, एज आई टोल्ड यू, ए कनकेव मिरर has 6 possible positions for image formation. Let's go for the first on the screen. First one is object is positioned at infinity. जब किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी या अनंत में रखते हैं कनकेव मिरर के सामने, तब क्या होता है। आप इस डायग्राम को, रे डायग्राम को अच्छी तरह से देखिए। देयर आर 2 rays P and Q touches the point on the mirror P at R and Q at S. ये दोनों रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आते हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एंड क्रॉसिंग थ्रू द फोकस। रूल सेकेंड, रिमेंबर दिस, सेकेंड रूल के हिसाब से फोकस को क्रॉस करके जा रहे हैं। इन्फिनिटी का मतलब होता है पी क्यू आपको जहाँ दिखा रहा है बहुत दूर, यानी कि मिरर से बहुत दूर, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी बहुत दूर। तो अब क्या होता है, तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज। बगल में टेबल दिया हुआ आप देखिए, इसमें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, size of the image and nature of the image. If you see the position of the object that is at infinity, that is not seen in this figure, ray diagram में आपको दिख नहीं रहा है, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं एफ पी क्यू जो है दूर से आ रहा है। पोजीशन एट द फोकस, इमेज आके फोकस में मिलेगा, क्योंकि आप देखिए ये दोनों इंटरसेक्ट करते हुए एक ही पॉइंट को टच कर रहे हैं। सेकंड रूल के हिसाब से फोकस वापस रिफ्लेक्ट होकर के, तो इसकी पोजीशन हमको दिखाई देगी हाईली डिमिनिश्ड
या पॉइंट साइज। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, बहुत छोटा होगा। मैंने आपको बताया था कनकेव मिरर, उसका पोजीशन रियल इमेज होता है, उसका पिक्चर आपको रियल दिखाई देगा बट बहुत छोटा और धुंधला सा, डिमिनिश्ड यानी कि रिड्यूस हुआ। पॉइंट साइज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में कितनी दूर पे है, ऐसा बहुत दूर है या कुछ नज़दीक है या थोड़ा और पास है, उसके हिसाब से। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड वन। सेकंड पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी और सी के बीच में, पहले वाला था कि इनडेफिनिट लेंथ पे था, सेकंड वाला सी के थोड़ी दूर पे, इन्फिनिटी से थोड़े इस तरफ, यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट m1 इज प्लेस्ड, यहाँ आप देखिए डायग्राम, रे डायग्राम आपके सामने स्क्रीन में, m1 एक ऑब्जेक्ट है। जब ये मिरर के सामने C पॉइंट देखिए, C के उस तरफ रखा हुआ है, तो इसका रिफ्लेक्शन फोकस से होके वापस आ रहा है और एक डायरेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए नीचे से रिटर्न जा रहा है। तो ये क्रॉस करता है C और F के बीच में, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अगेन रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, स्मॉल है और इसका पोजीशन है इमेज का बिटवीन फोकस एंड द सेंटर, और ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड C। साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश्ड, उसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड। दिस इज द सेकंड पोजीशन। नाउ कम टू द थर्ड वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज पोजीशन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर जब किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर C के ऊपर पोजीशन करते हैं कनकेव मिरर में, तब उसका ऑब्जेक्ट इमेज कैसा बनता है। देखो जस्ट ऑपोजिट साइड में सेम साइज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं, वन थिंग आई वांट टू टेल यू, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर टू द पोल, पोल से जितने नज़दीक होते रहेंगे आपका इमेज ज़्यादा वर्चुअल होगा और पॉसिबिलिटी है वो मिरर के पीछे उस इमेज का जाना। और ये जैसे ही पोल से दूर होता रहेगा तो इमेज मिरर के फ्रंट साइड में बनते रहेंगे, रियल बनेंगे, इन्वर्टेड बनेंगे। सेम जैसा इसमें देखिए, ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी C पे है और जो इमेज बना है वो भी C पे है। M और N ऑब्जेक्ट है, N डैश और M डैश जो है इमेज है, और दोनों की लेंथ भी एक ही है, साइज भी एक ही है, पोजीशन भी, लोकेशन भी एक ही है, जस्ट इन्वर्टेड है। तो दिस इज द थर्ड पोजीशन। नाउ द फोर्थ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पोजीशन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट अगर C और F के बीच में है, C और F सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तब क्या होता है, तब आप देखेंगे कि जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो बियॉन्ड C होगा। मेन गाइडलाइंस रिवर्स इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और ऑलमोस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि जैसे एक बार फिर याद रखिए, जैसे ही ऑब्जेक्ट्स सी पोल की तरफ जाते रहेंगे तो उसके इमेजेस बड़े बनेंगे। अब पिछला वाला में आपने देखा था C के ऊपर में ऑब्जेक्ट भी है, इमेज भी, दोनों बराबर है। तो जैसे ही इमेज लेफ्ट को जाना शुरू हुआ, ऑब्जेक्ट राइट को जाना शुरू होता है, तो इमेज बड़ा होने लगते हैं। तो थोड़ा इमेज इसमें बड़ा होगा। तो एनलार्ज दिया हुआ भी है टेबल में, रियल एंड इन्वर्टेड। ये फोर्थ पोजीशन थी। कम टू द फिफ्थ पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज पोजीशनड एट प्रिंसिपल फोकस। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट डायरेक्ट फोकस पे है, आपको पता है फोकस इज r/2, एक रेडियस को दो टुकड़े कर दें तो एक फोकस बनता है, आपको पता है फोकस पे है। तो यहाँ पे आप सिचुएशन देखिए, जो पोजीशन ऑफ इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। क्यों इन्फिनिटी पे? आप देखिए पिक्चर को अच्छी तरह से, रे डायग्राम को, एक लाइन M1 एक ऑब्जेक्ट है फोकस पे, M से P की तरफ एक लाइट गया, वापस आया PS। दूसरा आप देखेंगे M से Q की तरफ एक लाइट गया है, फिर उसी लाइन से ये वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करके आ रहा है। तो ये दोनों लाइन देखिए पैरेलल हैं, यानी कि जो इमेज बनेगा, पैरेलल लाइन कभी आपस में टच नहीं होते, बहुत दूर तक जाते हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये पर्टिकुलर इमेज
when an object is placed on the focus in front of a concave mirror, the resultant image is formed at infinity. इन्फिनिटी कहाँ बनेगा अनंत में जाके हमको पता नहीं है, और इतना बड़ा हो सकता है हाईली एनलार्ज, जितना दूर जाएगा वो उतना एनलार्ज होगा, और जो भी इमेज वो बनेगा रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा होगा. दिस वाज द फिफ्थ पोजीशन. नाउ कम टू द लास्ट इमेज पोजीशन. व्हेन ऑब्जेक्ट इज पोजीशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल पी. देखिए अब ये और नज़दीक आ गया. इमेज ऑब्जेक्ट को जितना मैंने कहा था आप मिरर के नज़दीक लेके जाएंगे, पोल की तरफ लेके जाएंगे, तो इमेज बनने का चांसेस बैक साइड में ज़्यादा होगा. तो इस कंडीशन में देखिए कनकेव मिरर आपको डाइवर्जेंट इमेज दिखाता है. हालांकि रेस कन्वर्जेंट हुई हैं लेकिन इसका इमेज बैक साइड को जा रहा है. अब चेक करके देखिए, बैक साइड में Mn in front of the mirror is object but the image is M dash N dash. तो ये एनलार्ज है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, एनलार्ज्ड है. तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे तो आप इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा, यू विल अंडरस्टैंड. इट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच डिसाइड्स द साइज एंड क्वालिटी ऑफ द इमेज. किसी भी इमेज का साइज कैसा होगा, क्वालिटी कैसा होगा, वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करता है. कोई ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है तो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको इमेज मिलेगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर है, इन्फिनिटी की तरफ है, अनंत की तरफ है, तो पिक्चर छोटे होते जाएंगे, डिमिनिश होते जाएंगे. और सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में है तो पिक्चर सी के उस तरफ बनेगा. फोकस के ऊपर है तो ये इन्फिनिटी में जाएगा. इसी तरह से तो पांच जो पहले इमेज हैं कनकेव मिरर में, ये जो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनते हैं. बट द सिक्स्थ वन इज एक्सेप्शन केस, ये मिरर के बैक साइड में बनता है क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट लेंथ है पोल से लेके ऑब्जेक्ट की पोजीशन इज वेरी क्लोज टू द मिरर. दैट्स व्हाई दिस इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. सो दिस वाज अबाउट 6 टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन by the concave mirror. Now let's see the image, 2 types of image formed by the convex mirror. As I told you earlier, मैंने आपको बताया था पहले, convex mirror केवल 2 तरह के ही images produce करते हैं. पहला है when object is positioned at infinity. See, when the object is at infinity, the rays Mn and Px that are parallel to the principal axis are divergent. As I told you earlier, मैंने आपको पहले बताया था कन्वेक्स मिरर डाइवर्जेंट मिरर होते हैं, इसीलिए हमेशा इमेज जो बनता है वर्चुअल मिरर के बैक साइड में यानी कि मिरर के अंदर में बनता है. तो फर्स्ट रे डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो इस रे डायग्राम में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ द इमेज एट द फोकस बिहाइंड द मिरर. आप देखिए बैक साइड में जो फोकस है, जो कन्वेक्स मिरर का फोकस है, वहाँ पे इसका इमेज बन रहा है, छोटा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, यानी कि इसका मुंडी ऊपर है, सिर ऊपर है, साइज छोटा है. तो वर्चुअल में साइज छोटे बड़े जरूर हो सकते हैं लेकिन पोजीशन हमेशा इरेक्ट होता है, स्ट्रेट होता है जैसा ऑब्जेक्ट है, और डिपेंड करता है इसकी पोजीशनिंग. इसकी पोजीशनिंग अगले वाले में हम देखते हैं. पोजीशन को अगर हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो इमेज की पोजीशन पे भी, इमेज की साइज पे भी इसका फ़र्क आएगा. तो ये हमारे डेली यूज़ के एप्लीकेशंस हैं, आगे हम और भी डिटेलिंग में इसको जानने की कोशिश करेंगे. नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर. सेकेंड, सी द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज पोजिशन बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस. यहाँ पे हम थोड़ा और नज़दीक आ गए. यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में यानी कि एकदम फोकल लेंथ वाली पोजीशन पे हम जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आप देखिए जो इमेज बना है वो भी अंदर, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट का पोजीशन है लगभग वही डिस्टेंस में
इमेज का भी पोजीशन है, बट वर्चुअल है, मिरर के पीछे है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, यानी कि रिड्यूस्ड है। डिमिनिश मतलब छोटा हो जाना, कम हो जाना या धुंधला हो जाना। तो ये दो ऑप्शंस टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर। सो फार वी हैव सीन 6 types of image formation in concave mirror and 2 types of image formation in convex mirror, and this is already given your textbook. आप अपना टेक्स्ट बुक में देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। अनलेस यू प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ इट करेक्टली। तो यू शुड नो वेयर इज सी, व्हाट इज आर, व्हाट इज फोकस, व्हाट इज फोकल लेंथ, हाउ व्हाट इज अपर्चर, हाउ रे डायग्राम्स आर रिप्रेजेंटिंग। एक रे डायग्राम बना है तो आप उसको देख के कैसे समझेंगे कि ये कनकेव का है या कॉन्वेक्स का है। तो ये चीज़ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो टुडे आई एम finishing by this only. In our next class we'll meet with a mirror equation and mirror formula and magnification. Thank you.